Yes, sir, you can start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, friends. Welcome to the webinar professional series of 54th. आप जानते हैं कि हर महीने हम किसी न किसी मौजू के साथ आप सबसे बातचीत करते हैं ताकि हम सब मिलजुल कर डेवलपमेंट अपनी कर सकें, अपने मुल्क की खिदमत कर सकें। आई एम योर होस्ट अरशद आकिब, CEO of ASK Development. ASK Development is your learning partner. It's a HR sourcing and human resource development company working for the last 20 years in Pakistan. And we are enjoying a very good company of professionals with us. आज का हमारा पैनल बहुत worthy, knowledgeable with splendid experience, international certifications और हायर लेवल एजुकेशन। मुझे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ एक एक करके। हमारे साथ हैं जनाब मोहसिन निशात साहब। आप ग्रुप CHRO हैं सरीना इंडस्ट्रीज के। मोहसिन साहब इज हाईली एक्सपीरियंस्ड ह्यूमन रिसोर्स एक्सपर्ट and executive with a strong background in communication service sector, FMCG industries like Unilever in Singapore, in Sri Lanka, Telenor Pakistan, KPMG, and with other textile groups as well. Currently, he is serving as Group HR for the Zaman Group of Textile, leading multiple companies, Sarina Industries, CFarm, Zaman Foundation, and some other clubs as well. आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में टीचिंग भी करते हैं एंड ताकि नई नस्ल इनके नॉलेज और एक्सपीरियंस से बेनिफिट कर सके। अमंग दोज NUST, FAST, LUMS, ZABIST and some other organization as well. आपकी सर्टिफिकेशन FCIPD from CIPD UK, SCP from SHRM USA and in coaching as well. आप एक known author हैं and we are lucky to have him with us today. हमारे दूसरे स्पीकर हैं जनाब हसन अरशद साहब। ही इज़ ग्लोबल डायरेक्टर ऑफ पीपल क्लाउडवेज एंड कंट्री HR लीडर फॉर पाकिस्तान। Nowadays he is in Karachi. Hassan Saab have more than 20 years of rich experience in telecom, non-profit, healthcare, manufacturing sectors, and is a trusted advisor to business and organizations. Mashallah, he has a quite very well established certifications like MBA in HR, Fulbright Scholarship, and he also has certifications from SHRM, GPHR, HRCI, Marshall Goldsmith, a certificate for executive coaching, SHL certified assessor, GEM learning certified trainer, and also is holding a certificate in humanistic counseling from CPCAB UK. He is also an MBTI administrator और माशाल्लाह with the great experience. तीसरे हमारे स्पीकर साथ हैं राना खुर्रम अली खान साहब। ही इज़ डायरेक्टर ASK डेवलपमेंट। By profession, he is a financial management expert, CA, and holds a PhD in economics. He has a very considerable experience in and outside Pakistan in Gulf countries. Also, he served in textile and other companies, and then also in ये जो बहुत सारी other companies in Europe as well. So welcome all three of you and our worthy participants जो usually still are joining us. आज का हमारा मौजू all of you know is ethical decision making under pressures. मैं एक रिसर्च देख रहा था just to set the tone of this webinar कि 74% of employees say they lose trust in leadership after a single unethical decision. One single unethical and 74 showed distrust. Employees who works under pressure are 3x more likely
to engage in unethical, यानी तीन क्या उसे कहेंगे जी हम, 3 times या 3 गुना ज्यादा उनके अनएथिकल होने का होता है when there is a pressure on them. Another PwC Consumer Trust report says 41% of consumers permanently stop buying from a company after an unethical scandal. 41%, वो they never come back, वो वहां पे खत्म कर सकते हैं. अच्छा, ये 3 एग्जाम्पल तो हुई when there is unethical practice. On the other side, एक रिपोर्ट है ECI ग्लोबल बिजनेस एथिक्स सर्वे रिपोर्ट. वो बताते हैं कि 14% मार्केट वैल्यू शेयर बढ़ जाता है जहां एथिकल प्रैक्टिसेस होती. तो दिस इज अ गुड अचीवमेंट. और 79% ऑफ द एम्प्लॉइज से एथिकल लीडरशिप इज द टॉप फैक्टर इन वर्कप्लेस सेटिस्फैक्शन. तो सेटिस्फैक्शन वाले जो एम्प्लॉइज हैं वो आर मोर एंगेज एंड प्रोडक्टिव. ये वो लोग हैं जो देखते हैं कि उनकी लीडरशिप एथिकल डिसीजन कर रही है. तो इस इन दिस वर्ल्ड ऑफ एथिकल एंड अनएथिकल, लेट्स गो टू आवर वर्दी स्पीकर्स टू नो कि उनका एक्सपीरियंस क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, व्हाट फोर्स पीपल टू डू अनएथिकल and how they can manage themselves under pressure. Mohsin Saab, if I request you, could you please speak on the topic? जी अर्शद भाई एंड हसन एंड राना खुरम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टू बी हियर एंड प्रोवाइड मी दिस अपॉर्चुनिटी. मैं बहुत क्विकली आपको अपना व्यू बता देता हूँ एंड देन मे बी वी कैन टेक अदर व्यूज एंड चलेंगे. देखिए, Sure. मेरे हिसाब से एथिक्स का कोई पहला तो सेकंड क्वेश्चन है ही नहीं. आपने इतने सारे स्टैट्स बता दिए हैं कि इसकी लैक या इम प्रेजेंस से क्या नुकसान होते हैं और इसकी प्रेजेंस से कंपनी को क्या क्या फायदा होता है. तो इसमें तो कोई सिंगल डाउट नहीं है. एथिक्स के ऊपर ये टॉपिक ऐसा है, मेरे हिसाब से हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं. तो फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, आई थिंक ऑल ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनीज दे formally articulate what is ethics inside the four walls of that company in the shape of values and in the shape of their code of conduct. तो जनरली हम जो इस वक्त वरना बेसिक एथिक्स तो है, इंसान कोई भी हो वो किसी न किसी आइडियोलॉजी को, फिलोसफी ऑफ लाइफ को फॉलो कर रहा होता है और इसके अंदर बड़ा क्लियरली दिया गया होता है कि सही क्या है और गलत क्या है और अच्छा क्या है और बुरा क्या है. और फिर आगे उसके पूरी की पूरी उसके ऊपर प्रीचिंग एग्जिस्ट करती है. ये स्टेम वहां से हुआ है. इसी तरह कंपनीज बताती हैं कि इस कंपनी के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट में क्या डूज एंड डोंट्स है, क्या जीरो टॉलरेंस चीजें हैं और क्या चीजें हैं जिनके ऊपर हमें क्वेश्चन रहना चाहिए. और उसी के उसको करने के लिए वैल्यूज बनाई जाती हैं कि जी इसको करने के लिए देन दीज आर 3 बेसिक बुक्स. और उनको करने के लिए जो अच्छी कंपनीज हैं वो पूरा फिर लीडरशिप बिहेवियर्स भी आर्टिकुलेट करते हैं कि जी इन वैल्यूज को अदा करने के लिए या हर वक्त इन लिविंग बाय दीज वैल्यूज वी शुड एक्चुअली बी टेकिंग हेल्प फ्रॉम दीज डे टू डे बिहेवियर्स. तो एक तो ये थोड़ा सा फ्रेमवर्क मैंने आपको बता दिया. अब इन सब जी चीजों जी. के बावजूद होता क्या है, रियल वर्ल्ड के अंदर आपके पास टारगेट्स या डेडलाइंस होती हैं. लॉट ऑफ टाइम आपके इंसेंटिव्स ऐसे आर्टिकुलेट होते हैं जो आपको गलत सोचने पे मजबूर करते हैं. मिसट्रस्ट बिटवीन ईच अदर इन अदर टीम मेंबर्स के अंदर होता है, तो आप कई दफा अनएथिकल एक्ट में इंडल्ज होते हैं. उसके अलावा अगर आपके पास फिर अकाउंटेबिलिटी और ये सब चीजें, बिल्कुल फेयरनेस, ये स्टैंडर्ड्स क्रिएटेड नहीं है, तो आपको लूप होल्स, फॉर्जरी, एम्बेसलमेंट और ये सब चीजें करने का मौका मिल जाता है. तो इसको अगर मैं कहूं कि अगर गवर्नेंस बहुत लूज है और आपने लोगों की वैल्यूज के ऊपर काम नहीं किया हुआ, तो वहां पे ये चीजें हो सकती हैं ज्यादा से ज्यादा. फिर इंडिविजुअल लेवल के ऊपर अगर आप फिर भी इन सब चीजों के आप अच्छे इंसान हैं, कंपनी ने सब चीजें की भी हुई हैं, बट स्टिल समटाइम यू गेट स्टक इनटू डिफरेंट डिलेमास. maybe one of the very, I think, two things which I feel are lacking in a culture जो आपको मजबूर कर देती हैं इस तरह की चीजों पे जाने के, वो होता है आपका ट्रस्ट amongst each other, particularly on the leadership. And second is your psychological safety system. How safe do you feel to call out an elephant in the room?
आप गलत को गलत कहने का आपको हौसला क्या आपकी कंपनी के कल्चर में दिया गया है, या डरावा दिया गया है कि नहीं पहले वालों के साथ ये हुआ था, अगर उन्होंने हम्म। कभी सच बोलने की हिम्मत की थी तो ये ना करना। तो जो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता फिर उसके आदी हो जाते हैं, फिर आप अगर खुद उसमें इंडल्ज नहीं भी हो रहे तो आप बोलना बंद कर देते हैं, जिससे कंपनी के अंदर ये अनएथिकल काम रुकते नहीं है बल्कि होते रहते हैं। तो मेरे बहुत सारे उस पे एक्सपीरियंसेस हैं, उसके ऊपर वो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने आपको फ्रेमवर्क बता दिया, मैंने मेरे हिसाब से रीजन बता दिए। अब मैं क्या करता हूँ जनरली, अगर आप मुझसे पूछें, मैं खुद इंसान हूँ, मेरे पास भी बड़े कई दफा डिलेमास आते हैं कि यार अगर ये काम मैंने किया तो हो सकता है पूरे एचआर का बोनस फॉर एग्जाम्पल मारा जाए। तो कोई सही। फर्क नहीं पड़ता ही, मैं कर तो दूंगा ही ना, 2-3 दिनों में तो मैं कर तो रहा ही हूँ, 98% कर चुका हूँ। तो मैं कह देता हूँ कि हाँ जी मेरा हो गया है, फिर ठीक हम्म। है 2 दिनों में उसे जान मार के कंप्लीट कर लेंगे, बोनस भी मिल जाएगा, इंसेंटिव भी हो जाएगा। तो इससे रुकने के लिए, तो ये एक मैंने आपको सिनेरियो दे दिया ना, व्हाट दिस इज अ प्रेशर सिनेरियो, लेट्स से आई हैव 50 टीम मेंबर्स एंड देयर फाइनेंशियल्स आर एट स्टेक by one decision which I will have that I have not completed maybe something on time, and ये सब सफर कर सकते हैं। इसलिए मैं कुछ करके आगे कह दूं कि नहीं ये हो चुका हुआ है, और फिर खुद पीछे से जान मार के आई थिंक वी जिस लॉस्ट हिज। पॉइंट इन टाइम पे मैं खड़ा हुआ हूं वहां पे ये काम मैंने कंप्लीट नहीं किया हुआ। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं जब हूंगा तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि जी मैं जिस तरह मेरा दिमाग ट्यून्ड है, आई विल इमीडिएटली, माई ब्रेन इज ट्रेन टू गो बैक टू बेसिक्स, थिंक अबाउट व्हाट आर माई वैल्यूज एज इंडिविजुअल्स, व्हाट आर द कंपनी वैल्यूज, what wrong this will bring इन टर्म्स ऑफ ट्रस्ट। ये मेरा पहला लिटमस है। क्या मैं एतमाद तो नहीं तोड़ दूंगा जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूं या जो मुझ पे भरोसा करके बैठे हुए हैं? और मेरा दिल मुझे आंसर दे देता है। अगर मुझे लगे कि मैं तोड़ दूंगा, आई विल नॉट डू दैट, आई विल मूव ऑन, आई विल से दैट आई हैव नॉट कंप्लीटेड इट, आई एम सॉरी, आई विल नॉट टेक दिस फाइनेंशियल बेनिफिट, इंशाल्लाह टाइम विल कम दैट वी विल टेक दैट बेनिफिट। दैट्स वेरी वेल सेड सर। बिल्कुल। आपने बहुत अच्छे तरह से फ्रेमवर्क और सिचुएशंस हमारे सामने रखी हैं। हसन अरशद भाई, आपका क्या एक्सपीरियंस है? हाउ यू सी दिस टॉपिक? ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इट मे साउंड अ लिटिल फिलोसॉफिकल, बट हम्म। जो हमारे बच्चे सुन रहे हैं, स्पेशली जो मिड टीयर के हैं, जो कि लीडरशिप पोजीशंस में अभी ट्रांजिशन हो रहे हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड इट इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल टॉपिक। द हायर यू विल गो इन ऑर्गेनाइजेशंस, यू विल रियलाइज दैट लीडरशिप क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है, और वो जो इसके साथ पर्क्स एसोसिएटेड होते हैं, उसके साथ उतनी ही स्ट्रेस भी एसोसिएटेड होती है। उसकी बिल्कुल। रीजन ये है कि यू आर इन अ डिलेमा ऑफ मेकिंग डिसीजंस, एंड एथिकल डिसीजन मेकिंग इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, इट्स नॉट एन इजी इक्वेशन टू बी सॉल्व्ड। तो आपने शुरू में कहा कि वो 40% ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा रेवेन्यू पोस्ट करती हैं जहाँ पे एथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं। तो जी। पहला बिजनेस केस तो आपने ही दे दिया। सो जो भी ऑडियंस सुन रही है, अगर आप एक एथिकल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं, तो यू आर इवेंचुअली गोइंग टू बी इन अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज ethics not only determine your product, they are आपके एचआर में, ऑपरेशंस में, सप्लाई चेन में, आपकी कमर्शियल कैपेबिलिटी में आपकी एथिकल डिसीजन मेकिंग नज़र आना शुरू हो जाएगी। एंड इवेंचुअली अगर आप जाएं थोड़ा सा मैस्लोज हायरार्की पे और सब कुछ, सो वंस यू टेक केयर ऑफ द बेसिक सिक्योरिटी नीड्स एंड फूड एंड बेसिक नेसेसिटीज, and then every human being has the innate desire to feel satisfied, जिसको हम एक्चुअलाइजेशन भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। सो वहाँ पे कहीं ना कहीं अनएथिकल प्रैक्टिसेस विल लीव सम गिल्ट इन योर एम्प्लॉइज, कि यार मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ जहाँ पे द फैब्रिक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट एथिकल। So सही। it's huge business case. It is a very important, actually the most important aspect of any organization. You can, reward your people with perks and benefits and fancy cars and stuff, but deep down, if they don't get a good night's sleep, or the next morning they don't look forward to come to office,
दे डोंट फाइंड अ पर्पसफुल एग्जिस्टेंस। हम्म, तो कहीं ना कहीं यू विल लूज गुड टैलेंट, कहीं ना कहीं यू विल लूज द रेवेन्यूज, कहीं ना कहीं यू विल लूज द कोर ऑफ योर बिजनेस। तो जिस तरह एक खानदान है, जिस तरह एक फैमिली है, जहाँ पे बच्चे जब बड़े होते हैं वो रियलाइज करते हैं यार वो शुरू में पेरेंट्स बड़े स्ट्रिक्ट थे, लेकिन जब हम हम्म, खुद पेरेंट्स बने या बड़े हुए तो रियलाइज हुआ वो हमारी बेहतरी थी। तो सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशंस आर अ सोशल यूनिट। जो भी एथिकल प्रैक्टिसेस और गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स हैं वो किसी वजह से होते हैं, एक एक डिसीजन में रिफ्लेक्ट होने चाहिए, लाइक फ्रॉम हायरिंग टिल एग्जिट्स। तो आई थिंक वी हैव टेकन अ रीजनेबल स्टार्ट टू दिस डिस्कशन। वी कैन मूव फॉरवर्ड, कम बैक। और श्योर। मैं तो ये भी चाहूंगा कि टू मेक दिस कंस्ट्रक्टिव, जो हमारी ऑडियंस है वो क्वेश्चंस भी विदाउट इवन शेयरिंग नेम्स दे कैन शेयर सम सिनेरियोज, जी ताकि जी, यूजुअली वी रिसीव सो मेनी क्वेश्चंस, लेट्स गो पॉसिबल फर्दर। में कुछ हेल्प भी कर सकते हैं, आई थिंक इन अपने एक्सपीरियंस से जो हमने कॉर्पोरेट में जी डिलेमास एक्सपीरियंस किए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा नुक्ता हमें बताया कि एथिकल बीइंग ए फार मोर सुपीरियर देन दी फाइनेंशियल एंड अदर सक्सेस फैक्टर्स, क्योंकि नींद रात को अच्छी तभी आती है व्हेन यू आर ए एथिकल बीइंग। वेरी वेल सेड। खुर्रम साहब, आपका क्या एक्सपीरियंस है? आप तो हैं भी फाइनेंस साइड से, और ज़्यादातर अनएथिकल शायद इसी वजह से होती हैं चीज़ें। नहीं, अनएथिकल इक्वल है। अनएथिकल जो है ना उसकी अपॉर्चुनिटी हर एक को मिलती है और एथिक्स की हम्म, अपॉर्चुनिटी भी हर एक को मिलती है। इट्स मोर ऑफ अ प्रोटेक्टिंग ऑफ वैल्यूज। सही। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज और जिस चीज में लोग बह जाते हैं, मतलब जनरल हम डिफाइन हम ये करते हैं कि जो एथिकल डिसीजन क्या होते हैं, जो राइट होते हैं, और बहुत दफा वो अनईजी होते हैं। दे आर नॉट इजी डिसीजंस। टेम्परेरी रिलीफ्स होते हैं, टेम्परेरी बेनिफिट्स होते हैं, प्रेशर्स होते हैं। प्रेशर्स बेतहाशा हो सकते हैं, डेडलाइंस होती है, फाइनेंशियल टारगेट्स होते हैं, बोनस चीजें होती हैं, मिसरिप्रेजेंट करते हैं चीजों को। और सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि जो लोग नहीं आइडेंटिफाई कर पाते, जो चीज तजर्बे से पता चलती है या पूरी जिंदगी देखा, कि वो अपने गिर्द रस्सी लपेट रहे होते हैं। एट टाइम्स उनको लग रहा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को फायदा दे रहे हैं, बट लॉन्गर टर्म ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लोगों को नहीं चाहती। अगर कोई प्रेज भी कर हम्म, रहा है उस चीज को, उनके किसी डिसीजन की वजह से हो गया, मिसाल के तौर पे कोई शॉर्ट टर्म जो है वो कोई गेन आ गया, शॉर्ट टर्म बेनिफिट आ गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एंटरप्रेन्योर, कोई लीडर ऐसे लोगों को ज्यादा अरसे तक अपने साथ नहीं रखता। मे बी उस वक्त प्रेज भी कर ले फॉर द टाइम बीइंग, बट वो सोचेगा जरूर कि ये चीज अचीव कैसे हुई थी, अचीवेबल थी, नहीं थी, अचीव कैसे हुई। और ये पहली चीज है ह्यूमन साइकी, और वो है कि जी जो हमारे लिए कर सकता है वो किसी और के लिए भी कर सकता है। हाँ तो बिल्कुल। आप अपने आप को डिक्लाइन कर रहे हैं, मतलब आप अपने आप को डिग्रेड करते हैं। और फिर वही बात है कि ये जो चीजें, वैल्यूज के प्रोटेक्शन जो है वो आसान नहीं होती। 90% जो लोग हैं ना वो मे बी, मतलब मैं कहूंगा कि वो मिस रिप्रेजेंट चीजों को मे बी फ्रॉड की वजह से ना करते हो, वो प्रेशर्स की वजह से करते होंगे। बट लॉन्गर टर्म अपने गिर्द रस्सी लपेटने आखिर में हैंग हो जाता है, उसी उसी वही रस्सी अपने गर्दन में फंसती है, लटक जाते हैं। और देन दे रियलाइज कि उस वक्त हम ये ना करते, आप कर किसके लिए आए सबसे। और ये याद रखिएगा, मैं इंडिविजुअल्स को स्पेशली कहूंगा, कभी ऐसा मौका है जहां आपको चुनना पड़े क्या सही है और क्या आसान है, तो ये देखिएगा कि इसका बेनिफिट किसको जा रहा है। हम्म, ऑर्गेनाइजेशन को जा रहा है, कितने अरसे के लिए जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन आप एक काम कर लें, प्रोफेशन में होती है बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, जब गो विद द फ्लो चीजें कर रहे होते हैं, बाद में वो केस लॉस बन जाते हैं, और बाद में आपको रियलाइज होता है जी मैंने फलानी वजह से किया था। नोबडी बॉदर्स। इस वक्त कोई नहीं, इस वक्त मे बी कोई आपको अप्रिसिएशन मिल जाए, कोई फाइनेंशियल बेनिफिट मिल जाए, चीज हो जाए, लेटर ऑन कोई इस बात को हजम नहीं करेगा कि आपने किस वजह से किया था। यू हैव टू सही। गो व्हाट इज राइट। आपको वैल्यूज को प्रोटेक्ट करना है, इजी चीजों पे मत जाएं। अगर बहुत हो गया, मैं फ्रेंकली बताऊं, बैकआउट कर जाएं, इंस्टेड कि आपको ऐसा काम करें जो बाद में आपके गले पड़ जाए। जो गिल्टी फिर बाद में आप महसूस करें, बिल्कुल ठीक। अच्छा, क्वेश्चंस हमारे पास आना शुरू हो गए हैं। तो पहले हम मोहसिन साहब से पूछते हैं। अरूज मकसूद का क्वेश्चन है कि व्हाट आर सम वार्निंग साइंस दैट प्रेशर इज इन्फ्लुएंसिंग अस टू compromise ethics, and how can we pursue and recalibrate in the moment? मोहसिन साहब। अपना पहला पार्ट आवाज लॉस्ट हुई थी, पहला पार्ट क्या था क्वेश्चन का? जी, पहला है कि साइंस क्या है कि हम ये महसूस करें कि प्रेशर हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है फॉर अनएथिकल क्वेश्चन, अनएथिकल डिसीजन। व्हाट आर दो साइंस, हाउ टू मेरे मेरे नो? में रहे लॉट ऑफ टाइम इन ऑर्गेनाइजेशन, साइंस यही होते हैं, कई दफा तो बड़े क्लियर होते हैं कि आपका लाइन मैनेजर
या पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस आपको कोर्स कर रहा है, मे बी इट कैन बी अ फोर्स्ड रिपोर्ट फॉर एग्जांपल, ओके। इट कैन डिसेप्शन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड इंडिकेटर्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है, या आपको हमें भी पता है मे बी द राइट इंडिकेटर इज अ रेशियो, बट वी से ओनली शो इट इन टर्म्स ऑफ वेटेड परसेंटेज। सबको पता है कि डिसेप्शन है, तो कोई आपको फोर्स कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो हायरार्की में सीनियर हो सकता है, वो डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट जो आप आ सकता है वो यही होता है कि वो, मैं उस चीज को डिलेमा कहूंगा कि आपका जो, अगर मेरा ये मानना है, आप बहुत सब लोग मुझसे डिफर कर सकते हैं, मेरा ये मानना है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को सलीमुल फितरत बनाया है, विच मीन दैट दे हैव बीन एक्चुअली क्रिएटेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉइजनस। सलीमुल फितरत का मतलब है कि उसके अंदर का जो है ना, जिसको आप झांक के देखें तो वो ठीक है, वो जब भी कभी इस तरह के डिलेमा पे आता है वो खटकता है कि क्या ये ठीक है। और उसके, मैं आपको जिस तरह मैंने पढ़ा हुआ है, फॉर्मली तीन चार किस्म की, दो चीजें तो बहुत खूबसूरती से करम साहब ने बता दी है, पर लेट मी शुगर फोर टेस्ट। वन इज कॉल्ड एज, जो खुरम साहब ने बताया, विच इज प्रेसिडेंट टेस्ट, कि आप ये काम करेंगे तो हम्म। सारे मैसेज को इसका क्या फायदा और नुकसान होगा, आप क्या चीज प्रेसिडेंट सेट करने जा रहे हैं, दैट्स द फर्स्ट टेस्ट। यू विल गेट एन आंसर वेदर दिस इज अ डिलेमा और नॉट। सेकेंड है सस्टेनेबिलिटी टेस्ट, कि इसका नुकसान थोड़े लोगों को होगा या बहुत सारे लोगों को होगा, सही। लॉन्ग टर्म होगा, शॉर्ट टर्म होगा। द थर्ड वेरी, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन, इज रिवर्सल टेस्ट, कि अगर ये जिस डिलेमा में फंसे हुए हैं, अगर आप इसके रिसीविंग एंड पे होते तो आप कैसा महसूस करते, आपकी जिंदगी किस तरह इंपैक्ट होती। दैट्स अ डिलेमा, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड व्हाट शुड आई डू। एंड द लास्ट वन, हाउ आई सी, जिसको जनरली मैं क्लासिफाई करता हूं, उसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी टेस्ट, कि क्या मैं पब्लिक के सामने जाके इस चीज को अगर एक्सप्लेन करूं तो सही। क्या मैं कंफर्टेबल हूंगा या नहीं हूंगा। अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूं तो this is a dilemma. There is something which is bothering, and I need to be very, very cautioned about it. I hope I've been able to answer the ऑफ कोर्स। question. और एक बड़ी अच्छी आपने टर्म इस्तेमाल की, सलीम फितरत, क्योंकि एथिक्स आर यूनिवर्सल। और किसी भी आप रिलीजियस से हों, नेशन से हों, वो ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। और इस पे एक हदीस मुझे अचानक जहन में आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि गुनाह और नेकी क्या है, तो आपने फरमाया कि दिल, जिस पे काम पे तुम्हारा दिल अफसुर्दा और पजमुज्दा हो, वो गुनाह है। और जिसमें तुम्हारे अंदर एक राहत और खुशी का एहसास हो, वो नेकी है। तो वो तो इनबिल्ट है, हम सब उसको लेके चल सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, हसन अशर साहब, सर, क्वेश्चन है कि ये जो एथिकल डिसीजन है, इसमें फियर का रोल ज्यादा है या रिवार्ड का रोल ज्यादा है, या हमारी, चूंकि आप साइकोलॉजी भी आपका माशाल्लाह एक सब्जेक्ट है, या ये हमारी इनबिल्ट कोई चीज है? प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को, हसन साहब। बिल्कुल। सो आई थिंक ये जो तीसरी ऑप्शन आपने बताई ना, ये इनबिल्ट है। और ये आपकी पेरेंटिंग, आपकी ग्रूमिंग, चाइल्डहुड, आपकी इनसिक्योरिटीज, सेल्फ असेसमेंट, रिफ्लेक्शन, ये इन सब से इमर्ज होती है। और ह्यूमंस आर एन इवॉल्विंग स्टेट ऑफ बीइंग। सही। तो अगर मैं इसको एक एग्जांपल के साथ सपोर्ट करना चाहूँ, प्लीज। तो मोहसिन का भी और मेरा भी टेलीकॉम में काफ़ी टाइम गुजरा, एंड वी वर पार्ट ऑफ टेलकोज हम्म। इन द ग्रोथ पीरियड्स जो थे। तो एक, वन ऑफ द टेलकोज आई वर्क फॉर, वहाँ एक कहते हैं ना, द लेजेंड, एक वो किस्सा बड़ा मशहूर था। वो ये था कि इन इन अ वेरी सीनियर लेवल मीटिंग, द MFS idea, the mobile financial services idea was pitched, एंड समवन सेड कि ये बिजनेस केस नहीं है और इसमें तो कोई जान नहीं है। बट इवेंचुअली अच्छा। लेटर ऑन some other telcos did it, and they did a wonderful job. So one person's opinion or seniority drove the decision, and a complete new business हम्म। vertical was not introduced। और अच्छा, इवेंचुअली उन्होंने किया। लेकिन आप ये देखें ना कि एक इंसान की पर्सनल ईगो, एस्पिरेशन और एबिलिटी टू लुक एट द थिंग्स लिटरली डिप्राइव दैट कंपनी ऑफ ग्रेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ऑफ कोर्स। और जो बाकी लोग वहां बैठे थे, देयर इनएबिलिटी टू क्वेश्चन, देयर हम्म। इनएबिलिटी टू कॉल स्पेड अ स्पेड, exploring more, active listening, asking open-ended questions,
गोइंग डीपर इनटू डेटा, ये भी वो एथिकल डिसीजन मेकिंग के एस्पेक्ट्स हैं जो कि किसी भी गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी को टैप कर सकते हैं। और इवेंचुअली उन्होंने ये काफ़ी रिग्रेट किया और वो बड़ा हम्म। किस्सा मशहूर हुआ। तो कहने का मकसद ये है, आपका सवाल ये था कि ये चीज़ इमर्ज कहाँ से होती है, फियर से, रिवॉर्ड से, या इनबिल्ट होती है। देखिए, फियर एंड रिवॉर्ड से आप टेम्परेरीली कंट्रोल कर सकते हैं इंसान को, सही। लेकिन जिस तरह अभी रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान में हमें ना फियर रोकता है खाने पीने से, ना रिवॉर्ड। ये इनबिल्ट एक कैपेबिलिटी जो इंसान में, मुसलमान में डेवलप होती है कि दिस एक्सरसाइज ऑफ Ramzan is for my benefit and it helps me exercise restraint, and that restraints help me in my other life, no, in non-Ramzan months as well. So जब मैं ओन करता हूँ रमज़ान को, तो मैं छुप के खाता भी नहीं हूँ। तो यही वो बेस है एथिक्स की और एथिकल डिसीजन मेकिंग की। वेरी राइट। बहुत शुक्रिया। अच्छा खुरम साहब, ये जो एथिकल होना या अनएथिकल होना है, आप ये पर्सन को एट्रीब्यूट करेंगे कि अगर वो स्ट्रांग है तो ही या शी कैन ऑलवेज डू द एथिकल डिसीजंस, और दिस इज द कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ दीज टू गो अलोंग विद ईच अदर? जी, मेरे मेरे हिसाब से इट्स मोर ऑफ अ पर्सन, 80% ठीक है। पर्सन पे होगा, इसलिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन में देखें, ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन में हर तरह के लोग हैं। जैसे एक बड़ी बेसिक सी चीज है कि ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें पॉलिटिक्स होगी। जब मैं नया हम्म। नया प्रोफेशन में आया, नया नया जॉब मार्केट में आया, तो मुझे एक सीनियर ने कहा था कि इफ यू थिंक ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स नहीं होती तो यू आर अ फूल। ठीक है। सही। तो मुझे ठीक है, सो सिमिलरली ना, ये अपॉर्चुनिटी देखें, ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनल है, उसके क्लाइंट्स होंगे, सर्कल होगा, नेटवर्किंग होगी, तो अपॉर्चुनिटीज या माहौल हर जगह होता है। पॉइंट वहां आता है कि जहां पे आपने, और खासतौर पे हम डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं, तो 80%, ये मेरे मे भी ज्यादा हो मतलब, बट 80% मेरे ख्याल में इट्स पर्सनल एट्रीब्यूट। और जो कमजोर होते हैं वही कल्चर में जाके चीजें मिक्स हो जाती हैं। अगर हैं स्ट्रांग तो आपको कल्चर भी नहीं होगा। अगर आप 100% हैं तो परफेक्ट है, अगर आप कम है, अगर कोई 50% से ज्यादा है, तो ही कैन बी द इनिशिएटर, या इनिशिएटिव वो मिल, एक पूल बन जाएगा, लोग मिल के कोलेजन हो जाएगा। पॉइंट ये कि 80% मेरे ख्याल में पर्सनल एट्रीब्यूट, और वही सही। जो होते हैं, अनलेस के कोई, मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा, कभी कभी सिनेरियोज आते हैं मूवीज में, हमने भी देखे हैं, ऐसे होते हैं, खुदा ना खास्ता लाइफ सेविंग चीज हो गई, वो कहते हैं सही। ना, लाइफ सेविंग में तो झूठ भी वो है, तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो। बट जनरली 80% इज पर्सनल एट्रीब्यूट, रेस्ट इज जो उसमें आता है। और जो कमजोर होते हैं वही फिर जाके वो ऑर्गेनाइजेशन या कल्चर के अंदर जाके चीजों को करते हैं। So, learning for me is कि if as an individual we are strong, तो most probably we will go for ethical decisions, और हमें जो सेम, लेकिन हाँ, attractions और इस तरह की चीजें हैं वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेंगी। ठीक है ना, जो प्रोटेक्टिंग वैल्यूज की हम बात करें, जो इंटरनल स्ट्रांग नहीं होगा तो वो तो अपॉर्चुनिटी निकाल लेगा ना। सही। सही। अच्छा, क्वेश्चंस हमारे पास काफ़ी आ रहे हैं। नजम साहब हैं, सैयद मोहम्मद अली उनका क्वेश्चन है, रफ़ीक सज्जाद साहब हैं, और बशारत अली साहब का क्वेश्चन है। लेट मी टेक वन बाय वन। मोहसिन साहब, पहले आपसे उसी तरतीब से हम चलेंगे। क्वेश्चन ये कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई व्हेन अ सिचुएशन इज एन एथिकल डायलामा रादर देन अ परफॉर्मेंस इशू? क्योंकि लोग परफॉर्मेंस के अंदर वो कहते हैं ना कि वो हलाल और हराम की बात का कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, और कहते हैं कि जी नहीं, टारगेट इज एवरीथिंग। वो कहते हैं जी कैसे कि मैंने डिफरेंशिएट ऐसा करें दोनों को? देखिए, अभी जो लिटमस टेस्ट बताया है, देखिए टारगेट्स वगैरह तो हमेशा होंगे, जिसको हम कहते हैं ना, कोहान तो होगा आपके पास जहाँ काम हाँ। करते हैं, कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज होंगे। लेट से अगर हमने उसको वैसे देखना हो कि जी लेट, मुझे अगर ये पता है कि जी मैं अगर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को ट्वीक कर लूं जी। या ट्रांसपेरेंसी को ना अप्लाई करूं, छुपा लूं किसी चीज को, सही। और उससे कोई मेरा जाती फायदा हो सकता है, दैट्स द फर्स्ट लिटमस टेस्ट। इट इज, जो ठीक है। बात आप कर रहे थे 80% इंडिविजुअल, एक्चुअली ये हम्म। बड़ी खूबसूरत चीज है कि जी जो नेगेटिव थॉट्स हैं जनरली वो इंटरनली ड्रिवन होते हैं, और जो जब आप अदरनेस की बात करते हैं वो कलेक्टिविज्म पे होती है, दूसरों के लिए, मेरी जात से बाहर निकल के। ये जहां जातियात आ रही होती है कि जी मैं छोटा सा फायदा उठा लूं किस तरह, मैं किसी किस्म का, कि वो हमेशा सिर्फ शायद इंसेंटिव हासिल करने के लिए नहीं है। कई दफा जिस तरह मैंने कहा है कि अगर कंपनी के कल्चर के अंदर खौफो खतर है कि यहाँ पे अगर फेल हो गया तो मारा जाऊंगा मैं, तो उसकी वजह से साइकोलॉजिकल सेफ आप महसूस नहीं करते, तो आप
इंफॉर्मेशन को ना चाहते हुए भी छुपाएंगे, क्योंकि आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस से डरते हैं। आपके सही। पास एग्जाम्पल्स है कि जी नहीं, इस ऑनेस्ट मिस्टेक को भी टांग दिया जाएगा, तो आप कहेंगे ऑनेस्ट मिस्टेक कर तो लिए, छुपा लो इसको। तो वेरी राइट। वो जो वो ये अब कल्चरल चीज भी हो सकती है आपको। तो आपका, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, तो आपको, आपका अगर कोई जाती फायदा लेने के लिए आप इंफॉर्मेशन को ट्वीक करते हैं, आप नॉन ट्रांसपेरेंट रहते हैं, या आप चीजों को हश हश करते हैं, तो आपको, आपके यहाँ ये चीजें अगर आती हैं, तो दोज आर डेफिनेटली डिलेमास एंड वी नीड टू थिंक अबाउट इट कि उसका रीजन क्या है। कभी वो टॉप लीडरशिप के एक्शन या उनकी तरफ से साइकोलॉजिकल सेफ्टी होगी, कभी लैक ऑफ कंट्रोल और अकाउंटेबिलिटी होगी कि यहाँ तो बहुत आसान है, इंफॉर्मेशन को ट्वीक करके आगे जो मर्जी कर लो, इनका तो कंट्रोल ही नहीं है। तो आप हम्म। करेंगे, आपको लूपहोल मिलेगा। तो हमारे यहाँ भी यही होता है ना, हम जब कई दफा कहते हैं कि आपका जो लॉ है, पाकिस्तान के हम्म। कई लॉ ग्रे हैं, ताकि सही। उसको आप जितना मोड़ना चाहे मोड़ लें, वो आपकी राइट। इंटेलिजेंस के ऊपर है। लेकिन उनकी इंटेंट, लेबर लॉज, मैं सब पे नहीं जाना चाहूंगा, लेबर लॉज की इंटेंट इज बेसिकली टू हैव कवरेज एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर्स। अब कई हम्म। दफा उसकी एक्सट्रीम लेवल की इंप्लीमेंटेशन, वो हम भी उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं एज एन एंटरप्रेनर, एंड यूनियंस भी कई दफा उसको एक्सप्लॉइट करती हैं, क्योंकि उसके अंदर क्लैरिटी नहीं है। वो दोनों तरफ लेके जा सकते हैं आप। सही। तो वो तो इस जिसका तरह बस की, चलता है वो उस तरफ ले चलता है उसको। तो इसलिए इसके लिए जब मैंने बात स्टार्ट की थी कि आपका डूज डोंट, जीरो टॉलरेंस ऑन दीज टाइप ऑफ थिंग्स, कंपनी को, लीडरशिप को बड़ा क्लियर कर देना चाहिए, ताकि ये भाम रही ही ना। और हम्म। फिर उसके बाद लोगों की ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन की जरूरत है कि जी ऐसा आ जाए तो क्या करना चाहिए। सही। वैसे भी आप सही फरमा रहे हैं कि ये जो परफॉर्मेंस का मामला है, ये यूजुअली टास्क आर रिटर्न, टाइमलाइन हमें मालूम होती है। अगर हम टाइमलाइन के अंदर अपना प्रॉपर काम करते हैं और अपनी जेडीज को लेके चल रहे होते हैं, तो फिर ये प्रेशर बनना नहीं चाहिए। ये समटाइम्स उसी वक्त होता है जब कहीं लैक हो जाता है, टाइम में, क्वांटिटी में, इंटेंसिटी में, क्वालिटी में, और फिर उसको पूरा करने के लिए हम अनएथिकल प्रैक्टिसेस की तरफ जा रहे होते हैं। ऐड भी। कीजिएगा कि अक्सर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम सारे के सारे, जिसको मैं कलेक्टिवली कह रहा हूँ, वर्क की बेसिस पे होते हैं कि ये केपीआईज और ये ओकेआर बस खत्म हो गया। वाइल जो ठीक है। अच्छा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें हाउ भी साथ अटैच होता है कि सही। आपने ये अचीव किया, लेकिन कैसे, क्या किसी की गर्दन पे पांव रख के, क्या हम्म। इंफॉर्मेशन को छुपा के, क्या डिसीव करके, वो हाउ। अक्सर लीडरशिप के टॉप पिरामिड के ऊपर वो 70% बात होता है, नीचे सही। वो 30 होता है, क्योंकि लीडरशिप ने सेट करनी है टोन की, जी हाउ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो परफॉर्मेंस में तो ये क्वेश्चन ही नहीं है, परफॉर्मेंस सिस्टम खराब हो सकता है, उसमें अगर सही। हाउ की प्रोविजन नहीं है, तो फिर तो आप गए, फिर तो आप केपीआई पे रिलाई करेंगे और आप खुद ये अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। सही। ठीक। थैंक यू। हसन रशीद साहब, सैयद मोहम्मद अली का क्वेश्चन ज़रा लंबा है, मैं उसका मुख्तसर, क्योंकि हमें टाइम को भी देखना है। हाउ टू मेक अ एथिकल डिसीजन? हमारे पास कोई क्राइटेरिया है, कोई फार्मूला है? वो उन्होंने एग्जांपल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की दी है कि मैनेजर कुछ कर रहा है और एचआर किसी और एंगल से देख रहा है। तो देन वी नीड अ क्राइटेरिया टू मेक एन एथिकल डिसीजन। अम, देखिए, स्पेसिफिक्स जाने बगैर कुछ सजेस्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन एक जनरल गाइडलाइन मैं बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस जो कर सकता हूँ वो ये है कि प्लीज। एचआर मैनेजर्स होते हैं, जनरली इफ दे आर वेल ट्रेन्ड, दे हम्म। मीन गुड फॉर द बिजनेस, और दे आर सपोज टू मीन गुड फॉर द बिजनेस, बिकॉज वो पीपल की नीड्स को सामने रखते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में टाइमलाइंस का और माइलस्टोन्स का एक चूंकि प्रेशर होता है, तो वो भी अपनी जगह ठीक होते हैं। सो इसमें दिस शुड बी एस्केलेटेड टू लीडरशिप, एंड लीडरशिप को भी ये अंडरस्टैंड करना है, और इन मैनेजर्स का काम है कि लीडरशिप को एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में हेल्प करें, उनको बताएं कि जी ये एक्चुअल सिचुएशन, एंड दिस इज ऑल्सो टेस्ट ऑफ देयर ओन एथिक्स, कि इस वजह से टाइमलाइंस डिले हो रही हैं, एचआर का व्यू हम्म। क्यों है, किस वजह से है, उनका व्यू क्या है, एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है। देन द पर्सन रिस्पॉन्सिबल, जो कि यूजली प्रोजेक्ट्स के स्पॉन्सर होते हैं, they will be in a better position based on their experience and the organizational fabric. ये मैं आई कीप रिपीटिंग दिस, कि सही। ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है, इट्स लाइक रिलीजन। तो हर रिलीजन के अपने कुछ कोड्स होते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी एथिकल
फैब्रिक है वो उसके मुताबिक लीडरशिप शुड बी एबल टू सपोर्ट दिस डिसीजन मेकिंग। मेरे ख्याल में अगर एक ऑर्गेनाइजेशन, ये मैं अपने थोड़े से बोल्ड एक बात करूंगा अपने एक्सपीरियंस पे, प्लीज। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एन ऑर्गेनाइजेशन शुड डू शुड नॉट बी ऑन मार्केटिंग और ऑपरेशंस, इट शुड बी ऑन लीडरशिप कैपेबिलिटी, देयर साइकोमेट्रिक टेस्टिंग, देयर कोचिंग। बिकॉज वो जो लोग हैं उनका जो पर्सनल एथिक्स हैं, दे विल सेट द होल कल्चर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, बशारत अली ये पूछ रहे हैं खुरम साहब, व्हाट एक्सपीरियंसेस व्हाट एक्सपीरियंसेस हैव शेप्ड योर एथिकल बाउंड्रीज थ्रू, यानी मतलब ये कि आपने सिर्फ अपने नॉलेज से अपने एथिकल डिसीजन किए हैं या प्रैक्टिसेस और तजुर्बात के बाद इस नतीजे पे पहुंचे हैं? देखिए, जैसे एहसन साहब ने कहा था कि ये एथिक्स है ना, ये अपब्रिंगिंग में शामिल होती है। आप बड़ा देखते सही। हैं कि आपके इर्द गिर्द क्या है, बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं ना, इसलिए हम कहते हैं ना वॉक द टॉक। आप अपने बच्चों के सामने जो चीजें करते हैं वो कल को उस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। सही गलत का फैसला जो है ना बहुत बचपन से स्टार्ट हो जाता है चीजें। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने क्या वैल्यूज देखी, आपने क्या किया, किस चीज को गलत किया जाना, किस चीज को सही जाना, कहाँ किस हद तक कॉम्प्रोमाइज करना, ये बिल्ट इन आ जाती है हमारी ग्रूमिंग के साथ साथ। एक तो इनिशियल ग्रूमिंग होती है। हाँ, जब प्रोफेशनल्स की बात करते हैं, देखें आसपास चीजें होती है, केस स्टडीज आते हैं, हम सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर, तो चीजें होती हैं, आपको पता चलता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पाकिस्तान तो इस मामले में ना एक खुली किताब है ना, आपको एग्जाम्पल्स ही एग्जाम्पल्स है, मसला ही नहीं है ना। आप कहीं भी देखें, इधर देखें उधर देखें, आपको एग्जाम्पल मिल जाती है। तो उससे लर्निंग होती है चीजें। मिसाल के तौर पे रोड्स हमारे सामने होती है जो खराब होती है, पता है टेंडर गया, उसके बाद हम एक ऐसी रोड पे ड्राइव करते हैं जो टूटी हुई होती है चीजें। इसी तरह डे टू डे चीजों में पहली बात ये कि जो इनिशियल जो बैलेंसिंग है, ये चेकिंग है, वो आपके अपब्रिंगिंग में शामिल होती है। और इसीलिए जो अगर मिसाल के तौर पे एक, और इससे कोई एजुकेशन का ताल्लुक नहीं है, पेरेंट्स जो ग्रूमिंग करते हैं उससे एजुकेशन का ताल्लुक नहीं होता। बिल्कुल ऐसे पेरेंट्स जो बिल्कुल लिखना पढ़ना भी नहीं जानते थे, उनके बच्चे माशाल्लाह बेहतरीन एक्सेस के हम्म। साथ चीजें होते हैं। मगर उसके बाद आप लर्न करें, आप देखें क्या गलत है क्या सही है। ये बात हम शुरू में कर रहे थे, प्रोटेक्टिंग वैल्यूज। आप किसी इदारे में काम करते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने उस इदारे के साथ लॉयल रहना है। कहाँ पे चीजें अनएथिकल जाती हैं, जहां पे उसका कोई नुकसान हो रहा हो। मैंने आपको एक चीज, उस दिन मेरी और आपकी डिस्कशन हो रही थी, हमने कहा जी नेगोशिएशन में एक ही चीज सीखी है कॉन्ट्रैक्ट बनाने में, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टर, कि अपनी चीजों को सेव करो और अश्योर करो कि दूसरे का नुकसान भी मत हो, सही। कि ना दूसरा हर्ट हो और आपके राइट्स भी सेव हो। उस वो कॉन्ट्रैक्ट एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। इसी को मैं एग्जांपल दूंगा कि आपको अगर आपके पास एक जिम्मेदारी है, आप उसको पूरा कर रहे हैं, जहां पे डेविएट होती है, जहां पे दो ऑप्शंस आ जाते हैं, आप जिस इदारे के साथ काम कर रहे हैं उस इदारे को बेनिफिट देना है। आपका इदारा कोई ऐसी इलीगल काम कर रहा है, आप छोड़ दें उसको, आवाज उठाएं, चीजें करें, इदारे का नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है। जहां पे आपका रिस्क अल्लाह ने जोड़ा है, उसके हक में चीजें करेंगे, आपको एथिक्स खुद ब खुद समझ आ जाएंगी आपके वेरी पास। और सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब आपके हाथ में पावर आती है, यू हैव टू डू द राइट थिंग। चाहे आप रिक्रूटर हो, चाहे आप फाइनेंस मैनेजर हो, चाहे कुछ हो, जब आपके पास अल्लाह ताकत देता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। और आपको खुद ही पता चल जाता है कि सही क्या है गलत क्या है। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। सही, थैंक यू। अच्छा हसन अरशद साहब, ये रफ़ीक साहब का क्वेश्चन है, बहुत टेक्निकल अंदाज में उन्होंने बात की है कि एथिकल साइड पे हाउ कैन रिस्क असेसमेंट टूल सपोर्ट एथिकल क्लैरिटी, और ये इट कुड बी अ साइंटिफिक टूल। वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल। देखें, while we agree कि ethics is a personal choice and it comes हम्म। from a lot of individual factors, yes, it is the organization's responsibility to put in to see कि किसी की पर्सनल वैल्यू सिस्टम कहीं कुछ ऐसा डिसीजन ना करवा दे जो कि हम सही। डिटेक्ट ना कर पाए। सो जो इंटरनल ऑडिट के फंक्शंस हैं, जो रिस्क मैनेजमेंट के टूल्स हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं। इनफैक्ट मैं समझता हूँ मोहसिन शायद चले गए इस मीटिंग से। जी जी, उन्होंने वो इस पे उन्होंने काफ़ी, बताया था, ही विल ज्वाइन शॉर्टली। तो उन्होंने इस पे काफ़ी काम किया। ही वाज एक्चुअली द डायरेक्टर ऑफ एथिक्स एंड कंप्लायंस एट टेलेनॉर। तो जी जी। उनका इनपुट भी ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा। मेरे एक्सपीरियंस में इट्स वर्थ द एफर्ट। रिस्क मैनेजमेंट की एक वो बड़ी फेमस मैट्रिक्स होती है कि प्रोबेबिलिटी कितनी है और रिस्क कितना है। और जो टॉप राइट बॉक्स में रिस्क आ जाते हैं, जिनके होने का चांस भी ज़्यादा है और उनका इम्पैक्ट भी ज़्यादा है,
उनको मैप करना, उनके अगेंस्ट एक्शन लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस कंटिन्यूटी परस्पेक्टिव। ठीक, थैंक यू। अच्छा, एक शफक शेख क्वेश्चन है कि SECP कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स क्या वो एथिकल डिसीजन मेकिंग में हमें सहूलत देते हैं? एंड आल्सो कि कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैव मैनी डॉक्यूमेंट्स फॉर रनिंग द matters and affairs at the company. What do you suggest? Ethics document should be a different one, or we should embed ethical practices in overall our governance model? Varun? देखिए And the अगेन same to ओवर Hassan Saab as well. जी Let him speak, please. ओवरऑल गवर्नेंस मॉडल को में आपने एम्बेड करना है। आप ठीक अलग है। से, ये कोई अलग चीज नहीं है, दिस पार्ट ऑफ लाइफ ना, ये तो डेली है। एथिक्स जो है ये तो आपको उठना बैठना एथिक्स है ना, आपका जो डिसिप्लिन, आपका ऑफिस का टाइम एक फिक्स है। कुछ लोग हैं जो रेगुलर लेट आते हैं, दिन में भी गायब रहते हैं, शाम को भी जल्दी जाते हैं, ये स्टार्ट है। ये एथिक्स की स्टार्ट है अपने टाइम को। कुछ लोग होते हैं जो एक नौकरी कर रहे होते हैं 9 to 5, दरम्यान में अपना प्राइवेट काम कर रहे होते हैं। ये सारी अनएथिकल चीजें हैं, प्रैक्टिसेस हैं। तो जो गवर्नेंस मॉडल, एक पहली बात है कि जो भी लॉज बने हुए हैं, रेगुलेशंस बनी हुई है, चाहे वो SECP का गवर्नेंस मॉडल है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीजें, जो गाइडलाइंस होती हैं आपको डिसिप्लिन सिखाती हैं। तो डिसिप्लिन इज ऑल अबाउट एथिक्स एज वेल। आप एथिकल जब भी रहेंगे जब आप डिसिप्लिन में काम करते रहते हैं। तो ये चीजें एम्बेड होनी चाहिए हर चीज में, आपके ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन में, आपकी एम्प्लॉइज हैंडबुक में, आपके JD में, और आपकी उसके बारे में अगर आपका अपना स्कोर कार्ड बनाते हैं, उसकी जो आप स्कोर फिल करते हैं, यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर। और वहीं से आपको पता चलेगा कि आप किस तरफ जा रहे हैं, क्या आपकी लाइफ में अनएथिकल चीजें तो नहीं। स्टार्ट हमेशा इन्हीं चीजों से होती हैं। या आपने टाइम को डिफरेंट मैनेज किया, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और है, उसका टाइम आप किसी और को दे रहे हैं, आप कोई ऐसी चीज कर रहे हैं, आप किसी को फेवर दे रहे हैं। तो ये छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं अनएथिकल, यहाँ से चीजें बढ़ती चली जाती हैं और आगे। तो सिस्टम में एम्बेड होना जरूरी है। इट्स पार्ट ऑफ अ कल्चर, इट्स पार्ट ऑफ द लाइफ। वेरी राइट। हसन साहब, आप कैसे देखते हैं इस मौजू को? आई टोटली एग्री विद दैट। जहाँ पे हम इसको एज अ प्रोजेक्ट समझ के एक वन टाइम एक्सरसाइज रन जी। करके, it has to be blended, it has to be part of the DNA of the organization। वो ट्रू। अक्सर होते हैं, कभी इस टीम को एम्पावर कर दिया जाता है एंड देन दे बिकम द वॉच डॉग्स, और कभी इस टीम को हेडकाउंट को ही स्लैश कर दिया जाता है तो वो उनकी बिल्कुल ही से ख़त्म हो जाती है। सो आई टोटली एग्री विद खुरम साहब दैट दिस हैज़ टू बी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्कोर। कंटिन्यूस असेसमेंट ऑफ रिस्क एंड गवर्नेंस होनी चाहिए ताकि वो चीज़ें सामने आती रहें और वो ह्यूमन एंड पर्सन डिपेंडेंट ना हो जाए। नोबडी शुड बी बियॉन्ड दीज टूल्स, नोबडी शुड बी, वो होता है बहुत से लोग अपने सही। टेन्योर और सिक्योरिटी के बेस पे दे बिकम द सिस्टम शुड बी सुपीरियर देन एनी इंडिविजुअल। वेरी राइट, बिल्कुल सही। जी, हमारे पास क्वेश्चन है समीन, अस्का समीन। वो कह रही हैं कि हाउ कैन यू एंश्योर एथिकल प्रैक्टिसेस इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इवन इफ यू आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व। उनका मतलब है कि जो अदर्स टीम डिसीजन है या हायरार्किकल बेस्ड डिसीजन है, यू आर नॉट पार्ट, बट हाउ यू कैन अवॉइड, बट you are aware that things you might go unethical at some point of time. How can we navigate through this situation? क्रिटिकल सिचुएशन उन्होंने बताई है, तो आप दोनों से यही सवाल है। फॉरम साहब, कैन वी स्टार्ट विद यू? जी बिल्कुल। देखें, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम योरसेल्फ। ओके। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, कैसा है, कौन सी सिचुएशन आएगी, अपनी चीज पर और अगेन हमारा टॉपिक ही आजकल ये है कि एथिकल डिसीजन अंडर प्रेशर। तो आप उसी की बात करें, जहाँ कल्चर होगा, प्रेशर आते हैं वहां पे, जब सब कुछ ठीक है वहां तो आप बाय बुक्स चलने में आपको कोई इशू नहीं आता। वहां तो प्रेशर है ही नहीं ना, जब वहां हम प्रेशर एथिकल नहीं है। कुछ। तो पॉइंट आपकी बात अच्छा क्वेश्चन है, इस पॉइंट व्यू से अच्छा क्वेश्चन है कि हम टॉपिक पे दोबारा इस पे आते हैं। देखिए, आप सबसे पहले, अब आप रिस्पॉन्सिबल है अपने आप के। तो ओके। आप इस चीज में मत बह जाएं कि जी ऑर्गेनाइजेशन ही ऐसी है तो बस जाने दें। आप पहला, आपका टारगेट क्या है कि आपने अपने आप को ठीक रखना है। इस तमाम आपको, और ये इट्स फ्रैंकली सैल्यूट टू यू, अगर ये रियल क्वेश्चन है कि आपने इस चीज को रियलाइज कर लिया
कि सही आपने रियलाइज कर लिया कि चीज, अदरवाइज कुछ चीजें बड़ी कॉमन प्रैक्टिस बन जाती हैं, कुछ चीजें कुछ नॉर्म बन जाती हैं। चीजें स्पीड मनी जो एक चीज थी ना, वो बड़ी नॉर्म बन गई थी, जो है ही है, ये तो कल्चर है, ये तो चीजें हैं। तो अगर आपने ये रियलाइज कर लिया तो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट टू यू, थैंक यू सो मच। अब आपने क्या करना है कि आपने अपनी चीजों को ठीक रखना है, आप अपने आप को ठीक रखें, ये पहला टारगेट है। सबसे ज्यादा मेहनत आपको इसके ऊपर करनी पड़ेगी। एक बात बताऊं आपको, अच्छे से अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग भी बैठे होते हैं जो काम ठीक कर रहे होते हैं, और सही बहुत बुरी ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे लोग बैठे होते हैं जो काम ठीक कर रहे होते हैं। तो अपने आप को तवज्जो दें, अपने आप को फोकस दें। आप किसी ऐसी चीज का पार्ट मत बने जहां पे चीज, अगर इतने बुरे हालात हैं तो कम से कम अपने आप को सेव रखें। हाँ, अगर आपको, जाहिर बात है, एक लिमिट से ज्यादा आप आवाज नहीं उठा सकते। हर ऑर्गेनाइजेशन में तरीके होते हैं। अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां आवे का आवे बिगड़ा हुआ है, तो एक डिफरेंट सिचुएशन होगी, डिफरेंट कहानी होगी। बट फोकस ऑन योरसेल्फ, यू हैव टू मेक श्योर दैट आप उसमें बह मत जाएं। अदरवाइज आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, आप अपने आप ही को ब्लेम करना होगा। सही, यानी अच्छा, जिम्मेदार हर कोई कैन अपनी आई काम करे। ऐड? जी जी, प्लीज गो अहेड। अच्छा, मैं सॉरी इसी तरह कनेक्टेड हूँ कि मैं ड्राइविंग शुरू करूंगा। मेरे इसमें ख्याल है कि एक चीज मैं हेल्प करना चाहूंगा अस्का को और बाकी पार्टिसिपेंट्स ये को। अनएथिकल तो नहीं हो अरे, जाएगा ड्राइविंग के हर एक शख्स साथ? का जी। एक वाई होता है। हम्म, वो वाई हर एक का है कि हम वाई क्यों, हम काम क्यों करते हैं, हम इस कंपनी का सही। पार्ट क्यों है, हम नौकरी करते ही क्यों है। वो डिपेंड करता है आपकी इंडिविजुअल वैल्यूज पे। और वो सही। बहुत स्ट्रॉन्ग फैब्रिक है टू एक्चुअली मेक एथिकल चॉइसेस। तो वो आपको बार बार जिंदा रखना, वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, हाईली एथिकल हो। इसकी एग्जांपल इसी तरह है दैट इफ यू आर वर्किंग इन अ कैसीनो, देयर वैल्यू सही इज टू गेट एज मच मनी आउट ऑफ पीपल पॉसिबल। हमें अजीब लगता है लेकिन दुनिया में कैसीनो की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। सही। अब वहां की वैल्यू सिस्टम है ही अलग। अगर मैं इस तरह के वैल्यू सिस्टम में काम नहीं करना चाहता तो मुझे वो पहले तो कंपनी ज्वाइन नहीं करना चाहिए। ट्रू। अगर मैंने कर ली है तो मेरा समहाउ मैं समझता हूँ कि ठीक है, मैं डायरेक्ट बैंक्स में बहुत सारे लोगों को इख्तलाफात होते हैं रिलीजियस या आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में। लेकिन देन व्हाट दे डू इज दैट दे फाइंड आउट व्हाट इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ हार्म दे कैन एक्चुअली डू टू अदर्स वेरी राइट। अनलेस दे फाइंड एन ऑल्टरनेट वे। तो मैं ये कहना चाहता था कि ये बहुत जरूरी है कि आपका अपना वाई पहले क्लियर हो, फिर आपकी वैल्यूज क्लियर हो, तभी आप सही राह पे रह सकेंगे। वरना you will always be struggling, government or non-government. सही। थैंक यू, इट्स वेरी गुड, प्लीज स्टे ऑनलाइन। अच्छा, हसन रशीद साहब, मैं इसको थोड़ा सा एक एकेडमिक टच देना चाहता हूँ। द सेम क्वेश्चन जो उन्होंने गवर्नमेंट के हवाले से किया है, शायद उनका अस्का का अपना ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो। अदरवाइज ये सिमिलर प्रेशर तो हर जगह है, हाँ, आप प्राइवेट सेक्टर में हो, मल्टीनेशनल में हो, कहीं ना कुछ चीज़ें होती है। जो मैं इसको एकेडमिक टच की बात कर रहा था कि ये जो प्रेशर है, ये तो होगा ही उस वक्त ना जब कुछ दाएं बाएं कुछ ऐसा हो रहा है जो एथिकल नहीं है या आपकी वैल्यूज से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल हालात का तो हमारे ये मौजू ही नहीं है। तो ये तो हमें आपको प्रिपेयर करना चाहिए प्रेशर्स के लिए और उन सिचुएशंस के लिए वेयर यू हैव टू फाइट बैक। व्हाट डू यू थिंक? सो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन चूंकि लार्ज स्कोप पे ऑपरेट करती हैं, जी और जी। उनका जो भी इम्पैक्ट है वो ग्रेटर कंट्री लेवल पे है। सो दैट इज व्हाई इफ समथिंग बॉदर्स यू देन उसका दैट इज व्हाई आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई शी आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि जी जी। इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। आई थिंक मेरे दोनों फेलो पैनलिस्ट ने इसको अच्छा आंसर किया। मेरा सिमिलर ही आंसर, वो एक क्लासिक सी थ्योरी है, जी वो जी। लोकस ऑफ कंट्रोल वाली, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वाली। सो स्टार्ट putting efforts to make yourself an example and an inspiration of ethics, and you grow in that public sector organization, and eventually you start sending the message out। देखिए, कैटलिस्ट ऑफ चेंज कोई भी बन सकता है। हम्म। आंसर इज नॉट एन ओवरनाइट सॉल्यूशन। इसमें आपको 5 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं। एंड यू, बिकॉज उसका पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना इज अ डिफिकल्ट टास्क। ऑर्गेनाइजेशन का साइज, स्कोप, इम्पैक्ट और उसकी जो लेगेसी है, उसकी वजह से आप चेंज नहीं कर पा सकते इजीली। प्राइवेट में at times the industry dynamics are changing so fast that you have an opportunity to suggest something, make a proposal, get it approved,
गेट द स्पॉन्सरशिप एंड इम्प्लीमेंट। सो मेरा आंसर ये था। बाकी जहाँ तक बात है प्रेशर में डिसीजन मेकिंग लेने की या एथिकल रहने की, अगेन आई वुड नॉट से कि कोई सिंपल सॉल्यूशन है इसका। बहुत से टाइम्स पे हमारे भी नर्व्स टेस्ट हुए, बहुत से टाइम पे हमने भी कोलैप्स हो ये लगा के हो जाएंगे या डैमेज हो जाएंगे। लेकिन कुछ अल्लाह हेल्प कर देता है, कुछ आपका एक सोशल सेटअप, एक अच्छे दोस्त, यू नीड टू हैव गुड मेंटोर्स, यू नीड टू हैव गुड पीपल टू टॉक टू। इवन ये जिस हम वेबिनार में बैठे हैं इसमें भी ज़ाहिर है मैं हूँ या खुरम है या मोहसिन साहब है, वी हैव शेयरिंग आवर एक्सपीरियंसेस, हम तीनों के बाल सफ़ेद हैं। तो ये सुनना, अच्छी मेंटोरिंग लेना, दिस विल डेवलप योर प्रेशर हैंडलिंग स्किल्स एज वेल। सही जी सही ऑन अ है। लाइटर नोट, मेरे तो बाल हैं ही नहीं। और मैं प्राइड लेने लगा था कि मुझे शायद हसन साहब ने यूं शरीक नहीं किया कि मेरे बाल सफेद नहीं है। सो आई एम द यंगेस्ट पर्सन ओवर हियर। ओके ग्रेट सर। एक तो क्वेश्चन और बहुत अहम है। मोहसिन साहब आपसे शुरू करूंगा, बट आई रिक्वेस्ट अदर टू पैनलिस्ट आल्सो टू रिस्पॉन्ड दिस। एथिकल होने के लिए अगर तो ऑर्गेनाइजेशन में एथिकल डॉक्यूमेंट मौजूद है या एम्बेडेड है तो इट इज इजी, देन देयर इज नो चैलेंज। अगर हम ये महसूस करते हैं तो शुड एवरी प्रोफेशनल शुड हैव हिज और हर ओन एथिक्स कंडक्ट और कोड रिटर्न, या एटलीस्ट मेंटली प्रिपेयर। मोहसिन साहब। अच्छा, मेरा इसमें ख्याल ये है कि हर आप इसको अगर हर इंडिविजुअल पे छोड़ देंगे ना तो दिस बिकम्स अ नेवर एंडिंग जर्नी। ओके। इसलिए लेट्स इसका बेस्ट हल यही है कि अगर आपको लगता है कि कंपनी ने अभी तक फॉर्मलाइज नहीं किया नहीं लेकिन किया। एक बहुत अहम टॉपिक है, तो आई वुड स्टार्ट दैट ड्राइव। हसन ने जिस तरह कहा था कि कहीं से गुडनेस स्टार्ट तो होगी ना, व्हाई बिल्कुल डोंट यू वांट टू बी दैट टॉर्च बेरर ऑफ चेंज। आप लिख के ले आए कि जी मेरा ये ख्याल है, और फिर आप उसमें जो कुछ सर्टन इन्फ्लुएंसर्स या जो की पोजीशन पे लोग हैं जो चेंज कैटलिस्ट बन सकते हैं उनसे रिव्यू करवाएं कि जी मुझे ये लगता है हमारे एथिक्स का कोड ये होना चाहिए, आपको क्या लगता है, एंड देन मेक अ रिफाइंड डॉक्यूमेंट। अदरवाइज अगर आप हर एक की विम्स एंड विशेस या उसके उस पे सही। छोड़ देंगे ना तो फिर तो वो ऑर्गेनाइजेशन ना रहेगी ना, फिर तो वो बनाना रिपब्लिक बन जाएगी जिसका दो चल सही। चाह रहा है वो घटा जा रहा बिल्कुल सही। अच्छा हसन साहब, इसको एक स्टेप और जरा आगे हमें गाइड करें। हम अगर एथिकल डायलामास को फेस कर रहे हैं तो हाउ कैन आई प्रिपेयर माई सेल्फ टू फेस दीज डायलामास। मुझे क्या सीखना चाहिए, कौन सी स्किल मेरे पास होनी चाहिए कि मैं बेहतर प्रिपेयर्ड हूँ कि एथिकल प्रैक्टिसेस कर सकूं। Reflection, self-reflection is something which is सही। important. Journaling is something which is important. सही। मैं थोड़ा लिख के पेन एंड पेपर टाइप ओल्ड स्कूल हूँ इस मामले में। आस्क योर सेल्फ वाई आई रिस्पॉन्डेड टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन एंड वाई आई डिड दैट। हम्म। मेरा जो पहला रिएक्शन था किसी भी एथिकल सिनेरियो में वो ये था, लेकिन वो क्यों था, वो कहाँ से स्टेम हो रहा है? क्या वो मेरे चाइल्डहुड से स्टेम हो रहा है? क्या वो मेरी अपनी इनसिक्योरिटीज हैं? क्या मेरे कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं जिसकी वजह से मैं मेरा इमीडिएट रिएक्शन था? और ऑलवेज लर्न, जो कि मैं खुद उस पर काफ़ी मैंने काम भी किया और कर रहा हूँ, टेक अ पॉज, डू नॉट हैव एन इमीडिएट रिएक्शन, एनालाइज योर रिएक्शन। सो रिप्लाई और रिस्पॉन्स में फ़र्क होता है। तो रिप्लाई आपका इमीडिएट होता है और रिस्पॉन्स थोड़ा सा कैलकुलेटेड होता है। सही। सो एंड देन अगेन मैं कहूँगा कि एथिक्स चूंकि आपके अंदर से आते हैं, तो गुड मेंटोर्स, आप उन लोगों को देखेंगे जिन लोगों ने वाइल बीइंग एथिकल सक्सेस पाई। तो जब एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज किए बगैर लोग सक्सेसफुल हुए, दे सही। माइट हैव द रेसिपी एंड मेंटोरिंग फॉर यू टू टेक द सेम पाथ। तो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे कुछ अच्छे मेंटोर्स मिले जो कि कॉम्पिटेंट भी थे, टेक्निकली भी सॉलिड थे, और वो उन्होंने अपनी एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया नहीं किया। और वो आगे भी बढ़े। तो फिर हमने कहा कि वाओ, व्हाई नॉट, वी कैन गो देयर, देयर इज सही। नो नीड फॉर मी टू बी aggressive, there is no need for me to be finding short ways and shortcuts. And then alhamdulillah थोड़ा बहुत, आई वुड नॉट से कि 100% सही रहा जर्नी, लेकिन बहुत हद तक एथिक्स को मद्देनजर रखते हुए ही सिलसिला चला। एंड आई होप हमारे माशाल्लाह 40-50 लोगों ने आज ज्वाइन किया, सारे इससे कुछ जी जी। थोड़ा बहुत भी सीख के जाएं।
सही। और इसका मतलब लोगों में ख्वाहिश भी है कि वी शुड एक्ट एथिकली। 100%। दैट्स वेरी पॉजिटिव थिंग। जी आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं जो मैं वो चाहूँगा कि उसे हमारे दोस्त नोट करें। एक तो आपने कहा कि आपकी सराउंडिंग, आपके रोल मॉडल्स अगर पॉजिटिव हों और ऐसे लोगों से आप लिंक्ड हैं कि वो एथिक्स पे बात भी करें, गाइडेंस भी दें, तो उससे बंदे को एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है जो ऐसी अनएथिकल चीज़ों को, प्रेशर को फेस करने में बड़ी मदद देता है। तो खुर्रम साहब, आपके पास क्या रेसिपी कोई मुझे दे सकते हैं कि मैं एथिकल होके अपना प्रोफेशनल में आगे बढ़ सकूं? बिल्कुल। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मोहसिन साहब ने कहा, ये जरूर है कि इदारे इस चीज पे काम करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिसको अगर हम अपने डेली डिसिप्लिन में लाएं। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हम किसी जगह जाते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं, किसी बड़े स्टोर पे जाते हैं। एट टाइम्स हम उनके सेल्समैन से एक्सपेक्ट करते हैं कि जी हमें अंदर की चीज बता दें। ठीक है, हम्म। दैट इज हम एक अनएथिकल चीज को प्रमोट कर रहे हैं। सही। ठीक, हम अनएथिकल चीज को प्रमोट कर रहे हैं कि वो ठीक है। एक चीज होता है छुपाना, एक चीज होता है ना बताना। तो इसी छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, कि और वो एट टाइम्स वो अब आदमी बेवकूफ भी बन जाते हैं। अब लग रहे होते हैं जी आपने कोई बहुत बड़ा वो मार लिया, वो बंदा बड़ा अच्छा था, उसने मुझे बता दिया। तो नहीं, ये एक अनएथिकल चीज को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप लिख के कोड ऑफ कंडक्ट बनाएं या जबानी बनाएं, जो भी बनाएं, कुछ चीजें होती हैं। और एक बात, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जो हमारी ऑडियंस के लिए और यंग लोगों के लिए, गलतियां हो जाती हैं, उस पर परेशान नहीं होना चाहिए। आगे उसकी भी तवाफ, अपनी कहते हैं वो तवाफ अर्जू, अपनी चीजों का मवाजना करें, मुआवजा करें, और देखें कि क्या हो गया क्या नहीं हुआ। एक गलती हो गई थी, कोई बात नहीं, आगे वो ना रिपीट करें। इट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि चीजें हुई। रिग्रेट्स जिंदगी को खत्म कर देती हैं। वो आपको मजबूर कर देती हैं कि जी एक गुनाह हो गया ना, तो अगला भी हो गया, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, इस्तगफार बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अल्लाह मियां ने इसका रास्ता बताया, और उसके साथ ये कि, और पता है, मतलब इस्तगफार इसीलिए आई थी कि पता था गुनाह तो होंगे, वेरी वेरी नेचुरल। सही। बट पॉइंट ये होता है कि आप उसको रिपीट मत करें। तो अपने आप के कोड ऑफ कंडक्ट बनाएं कि किस चीज में, और अपने डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करें। हम चीजें स्टार्ट करते हैं, यही चीजें कल को जब जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे होते हैं, या जहां पे थोड़ा सा लूज जो है वो कंट्रोल चीजें होती है, वहां पे मल्टीप्लाई करके चीजों को बर्बाद कर देती हैं। तो यू हैव टू हैव अ कोड ऑफ कंडक्ट। और याद रखिएगा, खाली इस तरह नहीं कि आप जहां काम कर रहे हैं इसको अपनी डेली लाइफ में करें। हम रूटीन में चीजें एक्सेप्शंस लेने के लिए, जो स्पीड मनी का कॉन्सेप्ट है ना, कि कहीं रश होता है हम बाईपास कर देते हैं, हर बंदा करता है, मैंने भी बहुत दफा किया होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि, मगर वो वहीं से चीजें स्टार्ट होती है। माशरा वहीं से अनएथिक्स चीजों को प्रमोट करना स्टार्ट होता है। तो यस, वी शुड हैव अ कोड ऑफ कंडक्ट। इदारों की जिम्मेदारी, हर बंदे की जिम्मेदारी अपनी, एज ए लीडर, एज ऑर्गेनाइजेशन हेड, एज इंडिविजुअल, ये कंबाइंड जिम्मेदारी है कि हम इस चीज को प्रमोट करें कि वी हैव टू गो एथिकल एज मच एज पॉसिबल। बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक दोस्त ने अच्छा, तो इसमें मैं एक प्लीज चीज ऐड कर लूं आपकी इजाजत से, अरशद से, अरशद प्लीज भाई। प्लीज प्लीज अच्छा, इसको प्लीज। मैं कोई बहुत दोनों ने बातें की हैं। हसन ने सबसे पहले बहुत प्रैक्टिकल टिप्स दिए हैं, और हमारे दूसरे पैनलिस्ट खुरम साहब ने भी। अच्छा, मैं इसको टॉपिक को इस तरह लेता हूँ अपनी जातियात के ऊपर, गिविंग वॉइस टू योर वैल्यूज ना। अगर मुझे अपनी वैल्यूज का पता है, मैं बहुत एग्जांपल लूंगा। मैंने अभी आपको प्रिंसिपल ऑफ रिपर्सल बताया था, कि आप उसको सामने देखें कि अगर ये आपके साथ हो रहा होता तो आप कैसे, क्या बीतती, आप क्या करते, which we known it as one of the value or a behavior which is called as empathy. Now, empathy is not just seeing others, rather experiencing yourself to that level कि जी अगर ये ज्यादती, बेईमानी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी मैं किसी के साथ कर रहा होता और वो मैं होता सामने, तो होता क्या। इसको वॉइस करने का फायदा ये है कि आप जब देखते हैं कि अच्छा मुझे एम्पैथी तो पसंद है, मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ कोई ज्यादती करे, तो फिर मुझे दूसरों के साथ क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे एक्शंस हैं। वीकली में क्या अकाउंट फॉर जर्नलिंग, खूबसूरत तरीन बात की है हसन ने, कि आप जर्नलिंग कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि यार आज तो मेरे पास 4 अपॉर्चुनिटीज थी एम्पैथी प्रैक्टिस करने की, एक भी नहीं की मैंने, 0 आउट ऑफ 4 है मेरा स्कोर, नीड टू इम्प्रूव। ये सारी कहानी आय से आगे चलती है फिर, कि मैं क्या करूं। और फिर जो मेरे दायरा कार में लोग हैं, वो मेरे बीवी बच्चे हो सकते हैं पहले स्टेज में, फिर उसके बाद मेरी नियर फैमिली सिबलिंग्स हो सकते हैं, फिर उसके बाद शायद मेरे ऑफिस में जो लोग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाए गए हैं वो हो सकते हैं। एंड इफ आई स्टार्ट डूइंग इट, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, अल्लाह ताला की तरफ से वो ये कहता है, एक कदम उठाओ मैं 100 कदम तुम्हारी तरफ भागता हूँ। वो खुद आपको अपॉर्चुनिटीज देगा जिससे इस तरह के डिफिकल्ट डिलेमास आएंगे, लेकिन वो खुद ही आपके लिए रास्ता भी निकाल देगा टू मूव फ्रॉम इट
without indulging yourself into unethical acts. बिल्कुल सही, थैंक यू। अच्छा, हम टाइम हमारे पास ख़त्म हो रहा है, तो एंड पे हम ज़रूर अपने स्पीकर से वन लाइनर लेंगे। काशिफ साहब, मुजम्मल साहब के भी मैसेजेस हैं, आई एम सॉरी ड्यू टू दी शॉर्टेज ऑफ टाइम हम उसको एड्रेस नहीं कर सकेंगे। वन लाइनर प्लीज़। हसन, पहले आप बताइए, आज के मौजू पे आप क्या ऑडियंस को देना चाहेंगे? वन लाइनर। वन लाइनर मैं यही दूंगा कि देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन आवर कंट्री। ठीक है। जो मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं जिनमें लीडरशिप का पोटेंशियल है, और वो उस पोटेंशियल को कैपिटलाइज करें और जी। एथिक्स को स्टडी भी करें, मेंटरिंग भी लें, आगे भी बढ़ें और हमसे बेहतर लीडर बन सकते हैं। यू डोंट नीड टू री इन्वेंट द व्हील। आपके घर में, आपके रिलीजन में, आपके बड़ों में बहुत सी लर्निंग्स हैं जो वो आपको इम्पार्ट कर सकते हैं। एंड देन मेक योर ओन जजमेंट, मेक योर ओन वैल्यू सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशंस में लेके जाएं। It's very much possible to make a mark. Yes, you will face a lot of struggles. You will have a few bad days. Pause and reflect. Risk Allah ने देना है. Stay ethical as much as you can. Good things will come to you. इसी मुल्क में मेरा भी कैरियर बना, मेरे बहुत से कोलीग्स का भी बना. So stay ethical and stay positive. It's a good challenge to have. जिंदगी में चैलेंज होगा तो मजा आएगा. सही, Uh, वेरी राइट। मोहसिन साहब, वन Organization में भी लाइनर। करना है. मेरे ख्याल में जिस तरह हसन ने कहा है उसको मैं कंटिन्यू करूंगा कि जी आप अपनी वैल्यूज के ऊपर बहुत फोकस रखें। सेकंड ये मैं कहूंगा कि जी कुछ ऐसी स्किल्स हैं वो अक्वायर करें। फॉर एग्जांपल स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंसिंग, फॉर एग्जांपल हाउ डू यू परसुएड अदर्स। तो ये हम्म। सीखें ताकि आपकी बात दिल की दिल में ना रह जाए, बल्कि अगर आप करना चाहते हैं तो एटलीस्ट 3-4 लोगों को इन्फ्लुएंस करके, फिर भी अगर वो नहीं बदल सके, वो चीज नहीं जा सकी, तो आपका इत्माम हुज्जत तो हो जाएगा ना, दैट आई सही। ट्राइड, आई फर्स्ट थॉट इट इज रॉन्ग, देन आई ट्राई टू परसुएड फ्यू पीपल आई कैन, बाकी ठीक है फिर देखा जाएगा, सब कुछ मैंने शायद नहीं कर सका, अल्लाह ताला जानता है, दैट्स व्हाट इट इज। सही। खुरम साहब, वन लाइनर। ग्रेजुअली करें और लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी को चूज करें शॉर्ट टर्म गेन्स की बजाय। वेल सेड, करेज बहुत बहुत अच्छा। इंपॉर्टेंट है, आपको बड़ी हम्म। सपोर्ट करेगी, बेशक ग्रेजुअली करें, करेज होनी चाहिए और लॉन्ग सही। टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी को चूज करें शॉर्ट टर्म की बजाय। फ्रेंड्स, चैट में हमने एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है। इसके अंदर एक प्लानर दिया है, हाउ यू कैन इम्प्रूव योर एथिकल प्रैक्टिसेस, और डिसीजन मेकिंग आप कैसे करेंगे। ये एक प्रूवन स्ट्रेटजी के ऊपर डेवलप्ड है। यू कैन यूज इट, इट्स टेक अवे। यू कैन क्लेम योर ई सर्टिफिकेट एज वेल। चैट में उसका ईमेल वगैरह दिए हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट ओवर देयर। और मेरी तरफ से वाइल लाइनर ये है कि यू कैन यूज 3R। 1R रूल्स, जहां आप काम कर रहे हो उस पर अमल करना एथिकल प्रैक्टिस इजी करता है। सेकंड आर रिजल्ट्स, इसका नतीजा क्या निकलेगा, किसी को नुकसान तो नहीं है। थर्ड आर इज योर ओन रेपुटेशन, स्पेसिफिकली इन योर ओन आइज, इन द आइज ऑफ योर फैमिली। इफ दे आर सेटिस्फाइड, इट मीन्स कि आप अच्छे काम की तरफ जा रहे हैं। एंड आई बिलीव आवर ऑडियंस like to be ethical. Thank you very much, Hassan Saab, Mohsin Saab, Khurram Saab, and see you next time as well. Thank you. Allah Hafiz. थैंक यू Thank सो मच, you. बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।